Hi guys, welcome to Sunya IAS. Today in this video we are going to revise two chapters. Okay, छोटे छोटे chapters है. So we thought कि एक ही वीडियो में लेके आते हैं so that थोड़ा सा पेस अप कर ले हम हमारा preparation because prelims are coming nearby. So here we are going to look at chapter number 10 and chapter number 11. Amendment of the Constitution. है ना, ये चैप्टर रटवाना है मुझे आज सबको. And basic structure of the constitution, ये another chapter. Now I'll tell you very seriously, when I started preparing as an aspirant, है ना, तो ये basic structure वाला पता नहीं, I mean क्या story था. And all the things that were going around, like if someone was trying to explain or if there were videos on it, it was getting very confusing for me. So I have been there, so don't worry, I will teach you in a very simple way, so that है ना, I will teach you in a very simple way so that you can easily remember it and retain it in your memory, and you can solve any sort of MCQs when it comes to these two chapters. Chaliye, let us not waste more time. Let us just start our session today. Question number 1. Identify the true statements. Okay. We are supposed to identify the statements which are true. So let us see. What is the first? An amendment. Guys, so here, let me tell you one thing. What do you mean by amendment? Amendment means that you can make changes in the constitution. In the salient features wala class, we all studied that our constitution is flexible and rigid at the same time. In what terms? In terms of amendability. Okay, so how you can make changes. So the forefathers है ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, those guys, they were very smart and they were aware that with changing time, अगर इंडिया में कोई लॉ, कोई रूल, कुछ चीज़ सेट नहीं हो रही तो उसको विथ टाइम चेंज करना पड़ेगा. सो दे हैव गिवन a procedure to change, है ना, make changes. It comes under article number 368. Okay, now I have also taught you the amendment procedure. We have taken from, borrowed from which country? I want the answer in the comment box. Okay, I'll tell you the answer right now, but write the answer in the comment box first of all. I taught you all, है ना, हमारे salient features वाले chapter में ही we borrowed it from South Africa. Now guys, we have to understand what kind of a democracy are we? We are an indirect democracy. What does that mean? That we elect our representatives, and these representatives, they rule on our behalf. Okay, ये जो elected representatives है वो सब कहाँ बैठेंगे? They sit in the parliament or state legislative assemblies. Done. And they will rule on our behalf. So whenever there needs to be made an amendment in the constitution, so any member of the parliament, है ना, be it a minister or just a normal member, okay, just a member, उसको private member बोलते हैं, any of these people can introduce the bill, start the procedure. I'm making it very simple and understandable for all of you. Okay, so it can be started in Lok Sabha and Rajya Sabha, है ना. सेंटर के पास है ये अधिकार जो है कि भाई हम अपने संविधान में कोई भी चेंजेस कर पाए, वो सेंटर के पास है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है. ये सारे पॉइंट्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज MCQs में ये स्टेटमेंट्स के रूप में आते हैं और हमें कंफ्यूज करके छोड़ जाते हैं. नाउ अगर ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, तो अगर डेडलॉक हो रहा है कि भाई राज्यसभा मान रही है, अगर लोकसभा मान रही है, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये बिल पास नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इन एनी केस नो जॉइंट सिटिंग इज अलाउड. दोनों हाउसेस को ओके ये बिल जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग ही पास करना पड़ेगा, सेपरेटली ही करना पड़ेगा.
डन। अगर कोई भी फेडरल, मैंने आपको फेडरल क्या होता है समझाया था, एनी फीचर दैट गिव्स मोर पावर टू द स्टेट्स, है ना, अपने जो यूनियन और स्टेट वाला जो सेटअप है उसमें सेंटर को नहीं, स्टेट्स को जब ज़्यादा पावर मिल रही है, वो वाले जो पॉइंट्स है अगर उनमें चेंज करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस 50% से ज़्यादा स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस, जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट, है ना, धीरे धीरे से सारी चीज़ें समझेंगे। एंड देन दिस बिल अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया, इट विल गो टू द president. Any bill that is passed goes to the president. If the president gives the assent, then क्या होता है, it becomes an act. Done. So this is the whole process. Now ये constitutional amendment bill जो होता है, जब ये पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ही कैन नॉट विदहोल्ड कि भाई मैं परमिशन नहीं दूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते, और इसको रिकंसिडरेशन के लिए भी वापस नहीं दे सकते, उनको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सी। अब ये क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल होने वाला है आपके लिए। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय ओनली अ मिनिस्टर एंड नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। नाउ वी ऑल नो दिस इज इनकरेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू अवर एलिमिनेशन ट्रिक्स वी हैव फाउंड द आंसर। जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है मैं काट रही हूँ, आंसर मिल गया बी। बट सिंस वी आर लर्निंग, रिवाइजिंग थ्रू MCQs, we will look at point 2 and 3 also. The bill for amendment of the Constitution of India has to be passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house voting and present. Yes, ट्रू, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, आई डिस्कस इट इन 5 seconds. An amendment of the constitution for the purpose of creating a new state must be passed by simple majority in the parliament. Okay, ये पॉइंट भी आगे देखते हैं। एंड इट इज ट्रू, वेन एवर देर नीड्स टू बी कोई चेंज करना होता है तो 3 तरीके से चेंज होता है। आई जस्ट इरेज दीज थिंग्स एंड पुट द पॉइंट्स। 3 तरीके से चेंज होता है। आर्टिकल 368 2 तरीके का बोलता है कि भाई स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट अगर वोट कर दे तो फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 इलॉबरेट करके देखेंगे। ओके, और एनी पॉइंट नॉट मेंशन्ड इन 1 and 3 तो वो ओनली पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है। 368 गिव्स सेकेंड काइंड ऑफ अ प्रोविजन, दैट स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस ratification of 50% of the states. What is ratification? State legislative assembly of 50% of the states must pass the same bill by a simple majority. And there is a third type of provision, है ना, कि भाई एनी चेंज दैट यू वांट टू मेक कैन बी डन, कैसे करेंगे, ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी। नाउ यार मैं कितना सिंपल स्पेशल ये सब बोल रही हूँ। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। और ये मेजॉरिटी होता क्या है, लाइक सी वी ऑल हैव बीन गोइंग टू प्ले ग्राउंड्स, जब स्कूल में थे किसी को हाइड एंड सीक खेलना होता है, किसी को लॉक एंड की खेलना होता है, एंड देन वी ऑल स्टैंड एंड डिसाइड कि भाई क्या खेलना है, रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू प्ले हाइड एंड सीक, काइंड ऑफ अ थिंग। सो यहाँ पे व्हेन आई टॉक अबाउट द मेजॉरिटी, सो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स है ना, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इफ दे अग्री टू इंट्रोड्यूसिंग अ बिल तो फिर वो पास हो जाता है। सेम हम लोग प्लेग्राउंड में करते थे ना, सेम वैसे ही प्रोसीजर होता है। ओके, पॉलिटी जो है ना उसको अगर आप अपनी डेली लाइफ से सिंपल करके जोड़ते जाओगे ना, ऐसे एकदम सिंपल से एग्जाम्पल्स से, तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन आएगा आपको। नाउ एज आई टोल्ड यू कि भाई ये जो मेजॉरिटी है उसके 4 टाइप होते हैं, प्लेग्राउंड में नहीं होते, सिर्फ पार्लियामेंट में होते हैं ना। मैं आपको ना थोड़ा फैक्ट के करीब भी ले जाऊंगी, रियलिटी के करीब भी। द फर्स्ट टाइप इज व्हाट, सिंपल मेजॉरिटी, कि भाई यार जितने भी लोग हैं और वोट कर रहे हैं उसके 50% वोट्स आ गए
तो बिल पास। ठीक है। सेकेंड टाइप इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? यहाँ पे देर इज अ की वर्ड जो मैं लिख रही हूँ, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू राइट टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट का 50% से ज़्यादा चाहिए। सी फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 545. So for an absolute majority we will need 50% of this number plus 1. So 273 plus 1 है ना। Now ये जो majority है कब यूज होती है? Generally not used. Okay. Now there's another type of majority, effective, है ना, इफेक्टिव मेजोरिटी। नाउ यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट वर्ड है ना उसी से आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। ये बोलता है कि भाई इफेक्टिव सीट्स कितनी है। से फॉर एग्जाम्पल 545 में से 545 सीट्स एम्प्टी है। ओके 545 से 45 सीट्स एम्प्टी है एंड ओनली 500 सीट्स आर ऑक्यूपाइड। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए? 500 का 50% प्लस 1. सो वी विल नीड 251 वोट्स फॉर अ पर्टिकुलर बिल टू पास। समझ में आ रहा है सबको? इट इज़ वेरी 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 सिंपल, है ना। नाव हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड ये जो स्पेशल मेजॉरिटी मैं बोलती रहती हूँ, वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी। प्लस ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगी, है ना। सिंपल याद रखना है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट वो कौन होता है? राज्यसभा है जो है उसके हेड बनते हैं, है ना, लीडर ऑफ राज्यसभा। स्पीकर है ना, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इन लोगों को निकालने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ की जाती है। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर स्पेशल मेजॉरिटी की बात की जाए तो व्हाट हैपन्स? स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है? 2/3 है ना ऑफ द मेंबर्स वी नीड देम टू बी प्रेजेंट एंड वी ऑल्सो नीड देम टू बी वोटिंग, है ना। और 50% जो होते हैं लोग, है ना, उनकी मेजॉरिटी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में 245 लोग हैं, है ना, तो हमें 123 वोट्स चाहिए। सो कैन आई से हमने अभी तक लोकसभा का एग्जाम्पल लिया था, अब मैंने राज्यसभा का ले लिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, उसका 50% चाहिए प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स हमको प्रेजेंट चाहिए एंड वोटिंग चाहिए। सो आई होप एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल, सिंपल सारी मेजॉरिटी हमारे दिमाग में अब क्लियर हो चुकी है। आगे देखते हैं। Which of the following are matters on which Parliament has the power to modify provisions by a simple majority? Now guys, as I told you कि भाई 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। अब मैंने आपको सिखा दिया कि भाई जो सेकंड तरीका है उसमें क्या आएगा? स्पेशल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट ओनली। तो उसमें DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स और 1 और 3 में जो मैटर्स नहीं लिखे हुए वो आएंगे। सो आई विल टीच यू वेरी सिंपल मेथड। और थर्ड जो है जिसमें 50% ये तो चाहिए प्लस 50% रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, है ना। इसमें ओनली 8 मैटर्स आर देयर। कितनी? ओनली 8 मैटर्स। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि जो वन पार्ट है जो सिंपल मेजॉरिटी से 18 से 20 चीज़ें अमेंड की जाती है ना, जो हमारी बुक में मेंशन्ड है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें अमेंड होती है। सो आई डोंट थिंक ये आप देख लो एक बार, बट आई थिंक यू शुड डू अ वाइज थिंग। ये 8 चीज़ें याद रख लो एक बार, DPSP FR याद रख लो। इसके अलावा सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होगी। वेरी 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 सिंपल। छोटी इन्फॉर्मेशन याद कर लो और उसके अलावा सारी जो बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन है वो आ ही जाएगी उसमें। सो हियर आई टेल यू द लिस्ट ऑफ दीज 8 थिंग्स एंड देन हम जाएंगे क्वेश्चन पे। सो हमने क्या बोला था कि यार ये रैटिफिकेशन वाला जो चक्कर आएगा, है ना, 50% ऑफ द स्टेट्स। अब याद रखो स्टेट्स को तो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास करना है। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस
तो ये आएगा 368(2). 8 चीज़ें हैं और ये फेडरल वाले जो प्रिंसिपल्स है वो आएंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी देयर एंड इट्स मैनर। सेकेंड, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। कौन सा? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। देन विल टॉक अबाउट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जुडिशरी की बात कर दी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर ली। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। सो सी यहाँ पे जो भी डिविजन ऑफ पावर्स वाली बात है ना, प्लस जुडिशरी की बात है, वो यहाँ पे आ गई। देन जीएसटी, ये नया नया ऐड हुआ है ना, फेडरल फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं इसे हम। देन 7th शेड्यूल की जो लिस्ट है उसको भी अगर अमेंड करना है तो ये वाली मेजॉरिटी लगेगी। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ओके, ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। 8th नंबर पे आएगा भाई 368 इटसेल्फ, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर में ये 368 इटसेल्फ कैसे आया इसका हम डिटेल में देखेंगे। सो ऑल व्हाट आई वांट इज कि आप ये 8 चीज़ें याद रख लो। इसके अलावा सारा सिंपल मेजॉरिटी से होगा। क्या पूछा है यहाँ पे? सिंपल मेजॉरिटी, प्लस आई ऑल्सो टेल यू जनरल नॉलेज से कैसे लिंक कर सकते हैं। सो ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स, बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ स्टेट। यस भाई, अभी JNK के स्टेट को UT बना दिया गया, 2 UT बना दिए गए, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो गया। तो फर्स्ट तो आना ही आना है, तो इसे कैंसिल कर लेंगे। डन। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस। अब भी हमने देखा कि जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वो तो कैसे होगा? स्पेशल प्लस 50% रैटिफिकेशन चाहिए स्टेट्स का। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, है ना। तो ये हमने कैंसिल कर लिया। एबोलिशन ऑफ सेकेंड चैम्बर ऑफ द स्टेट हमने नहीं पढ़ा, तो येस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। गाइस कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई सेकेंड स्केड्यूल में चेंज करने हैं, 5th स्केड्यूल में चेंज करना है, 6th में करना है, तो भाई कौन से प्रकार का मेजॉरिटी यूज़ होगा? तो इसमें आएगा सिंपल। याद रखिए, ओनली 7th शेड्यूल में हमें लगेगा 368(2) वाला मेजॉरिटी। इट इज़ वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। स्पेशल मेजॉरिटी 368(1) एंड 2 दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी ओनली लिखा होता तो ओनली 368 देखते, बट सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी लिखा है। Conferment of more jurisdiction on the Supreme Court. Deelimination of constituencies. Election of the president, ये तो हमने देखा ना? Yes. DPSP, yes. Now, डिटेल में जब हमने वो 8 चीज़ें पढ़ी, 8+2 368 वाली, तो कहीं पे भी आपको डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखा? से येस और नो। डिड यू एवर फाइंड इट? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट? नहीं, है ना। मोर जुरिस्डिक्शन? नो। सो द आंसर इज हियर 3 and 4 ओनली, राइट। सी लाइफ कितनी सिंपल हो गई। rather than ratifying 18 things and remembering कौन सा किस लिस्ट में जाएगा, बड़ा वाला लिस्ट ही याद नहीं करती मैं तो। और मेरे स्टूडेंट्स भी, दे आर वेरी हैप्पी एंड यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दीज small tips and tricks. Which of the following provisions require a special majority of the parliament and also require consent of half of the state legislatures by simple majority to get amended? किसकी बात कर रहे हैं? 368(2). इसमें हमने 8 चीज़ें देखी थी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यस। फेडरल लिस्ट, है ना। ये फेडरल लिस्ट वाली चीज़ आपको याद रखनी है। फेडरल लिस्ट आया था, हाँ भाई, 7th शेड्यूल की बात की गई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, यस, एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ। कौन कौन सा इसके अलावा देखा था हमने? जीएसटी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो यहाँ पे जुडिशरी आ गया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। सी बहुत ईजी है।
इट इज़ वेरी इजी इफ यू रिमेंबर द जिस्ट ऑफ इट. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये अपना असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया. बाय अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट नहीं कर सकता अमेंडमेंट से, ये असर्शन है. सो दिस इज कंप्लीटली ट्रू, है ना. सो डी वाला जो है वो तो कैंसिल ही हो गया. रीजन आर द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू abrogate the constitution. Reason is correct or not? You guys tell me. Yes, reason भी correct है and it is the correct explanation. So here our answer is A. है ना, आपको सत्ता है चेंज करने की, पर आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकते. नाउ आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग नीचे स्टेटमेंट्स देखना है. चलो देखते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट अ जॉइंट सेशन. हमने पहले ही देखा भाई, नो जॉइंट सेशन, इंडिविजुअली करना है. इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू अ. येस, इट इज़ वेरी मच ऑब्लिगेटरी, हमने देख लिया. टू अमेंड 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रैटिफिकेशन ऑफ मोर देन half of the state legislature is essential. Now you tell me, is it essential or not? Okay. A proposal to amend the constitution can, okay, be introduced in the house of people. ओनली है नहीं, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह पे ये कर सकते हैं. सो ये इनकरेक्ट हो गया. नाउ यू हैव टू सी कि भाई ये दोनों प्राइमा फेसी सही लग रहे हैं. डन. सो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट. नाउ यू नो इट इज़ जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स. इट इज़ कंपल्सरी, ही हैज़ टू गिव द असेंट. सो अगर देखने जाए, ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस द रैटिफिकेशन आएगा, है ना. सो यहाँ पे इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन. ओके, एंड यहाँ पे इट सेज कि भाई इट इज ऑब्लिगेटरी, यस देना ही पड़ता है इनको एक्सेंट. सो द मोर करेक्ट आंसर इज बी, है ना. यहाँ पे क्या है, हाफ इन्फो है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट का मेंशन ही नहीं है. सो क्या हुआ अपने पास, बी एंड सी लुक वेरी करेक्ट. ओके, इट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो दीज टू लुक करेक्ट prima facie. कैन वी से 2 3? यस, परफेक्ट. थोड़ा सा आगे चलते हैं. बट गाइज इफ इट इज ABCD and you have to choose between any of these two, then you have to look for half information, full information wala thing. Now we are starting chapter number 2 for today, that is basic structure of the constitution. क्या है basic structure में? I promised you I will tell you the entire story in a very simple way. Now हमने जब DPSP वाला पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें वी हैड सीन द टसल बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, कि भाई कौन किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, विच इज़ मोर गिवन मोर इम्पोर्टेंस. और इसी चक्कर में पार्लियामेंट एंड जुडिशरी जो है उनका भी एक पावर टसल चलता रहता है. सो दिस इज़ द सेम थिंग. यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है इश्यू, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें हैं. तो चलिए, जैसे वो स्टोरी सिंपल हो गई थी अपने लिए, ये स्टोरी भी सिंपल हो रही है. डन. नाउ दिस होल थिंग, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इमर्ज कैसे हुआ वो देखते हैं. तो सबसे पहले इमर्जेंस स्टार्टेड फ्रॉम 1951. कौन सा केस, हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था, शंकरी प्रसाद केस. ओके, अब ये शंकरी प्रसाद केस जो है उसमें ये वर्डिक्ट दिया जुडिशरी ने कि भाई फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिलीटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ
Article 13. So what happens? There is no judicial review, है ना. पार्लियामेंट को पावर दे दिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 368, और इसके अंदर वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. डन. और जो वर्ड लॉ है हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, ऑर्डिनरी लॉ आ गया, टेम्पररी लॉ, एनी कस्टम्स विच हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें आ गई. बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इट इज़ आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 13. तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का. डन. अब थोड़ा आगे चलते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन? गोलकनाथ केस विल हैपन. गोलकनाथ केस, आई हैव टोल्ड यू, एक ही चीज़ याद रखनी है. गोलकनाथ केस में इट इज़ सेड फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, मतलब यार भगवान ने दिए, इसको चेंज कर ही नहीं सकते, इसको आप ले ही नहीं सकते. और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 13 के परव्यू के अंदर रख दिया गया. मतलब कि भाई अगर कोई भी अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अगर वो कोई भी फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो भाई वो कैंसिल हो जाएगा, है ना. इट विल बी इनइफेक्टिव. अब जैसे हमने देखा कि जब भी जुडिशरी पार्लियामेंट के पावर कम होने वाला कोई भी वर्डिक्ट देती है, द पार्लियामेंट रिएक्ट्स. एंड in 1971 the parliament reacted and it amended article number 13 and 368 both. ठीक है. So what happened? Amendment number 24 happened. Amendment number 24 से क्या किया गया? Amendment नंबर इसको 13 को अगेन CAA का पार्ट से निकाला गया. डन. पार्लियामेंट को पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट छीन ले. ओके. एंड ये जो भी एक्ट है वो 368 के परव्यू में नहीं आएगा. तो अगेन CAA को 13 के परव्यू से निकाल दिया, है ना. आई जस्ट इरेज दिस एंड वी विल राइट द न्यू कोर्स. देन कम्स अवर लाइफ सेवर केस, जहाँ पे आके ना सारी स्टोरी खत्म हो जाती है. केशव नंद भारती केस 1973. व्हाट डज दिस केस से? कि भाई यार एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पे इवॉल्व हुआ कि जो चीज़ें बेसिक है, जो चीज़ें नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पूरी राज व्यवस्था का आधार है, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, है ना. प्लस इट सेज कि भाई ये जो आर्टिकल 368 है जिसको आप अनलिमिटेड पावर देते रहते हो जब भी मर्जी आए, ये नहीं है, क्योंकि 368 से बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते. तो अल्टीमेटली 368 जो है ना, उसका पावर ही लिमिटेड हो गया. एंड ये 368 हमने देखा था 368(2), है ना. अगर 368 में भी अगर कोई चेंज करना है इस आर्टिकल नंबर में तो यू विल नीड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम 50% ऑफ द स्टेट्स. डन. सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी कि कैसे इमर्ज हुआ अपना बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का. डन. इसके आगे एक और लैंडमार्क जजमेंट है जिसको मिनर्वा मिल्स बोलते हैं, और वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया. नाउ गाइस ऐसे बहुत सारे केसेस आते गए एंड ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर नए नए एलिमेंट्स ऐड होते गए. इफ़ आई हैव टू टेल यू वेरी सिंपली, है ना, वेरी सिंपली, वेरी प्लेन, उसमें 2-4 पॉइंट्स प्लस माइनस हो जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ आवर सेलियंट फीचर्स जो है ना वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. नाउ देखते हैं, अब तो आपको सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. शंकरी प्रसाद केस. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नाउ यू गाइज टेल मी, इज इट करेक्ट और नॉट? येस, इट डिड से दैट, है ना. चेंज कर सकते हो और फंडामेंटल राइट्स भी टेक अवे कर सकते हैं. In Golaknath case, the Supreme Court reversed its earlier stand and held that Parliament cannot take away any of these rights. है ना, sacrosanct है, change कर ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते. Present position is that Parliament can take away any fundamental right. अब आप सोचोगे ये है, नहीं है. It cannot take away any fundamental right. What if that fundamental right is part of the basic doctrine? है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वाले डॉक्ट्रिन का पार्ट है तो नहीं ले सकते. So our answer is B. Let's go here.
Which of the following has emerged as elements of basic structure of the constitution based on various judgments of the Supreme Court? Now guys, understand here. मैंने आपको क्या समझाया कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेलियंट फीचर्स हम पढ़ते हैं यूजुअली, वो इसमें आएंगे. सो सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़ वेरी फंडामेंटल, तो ये आएगा. हारमनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ये भी हमने पढ़ा. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस इट इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ आवर गवर्नेंस. Principle of reasonableness, yes. Welfare state and ideas of social economic justice. Guys, the answer will be D, all of these. Now, which of the following Supreme Court of India cases concerns the resolution of conflict between fundamental rights and directive principles? ये हमने कल भी डिस्कस किया था, and we all should know this on our fingertips. चंपकराम केस, यस, कल ही डिस्कस किया था डिटेल में. गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, ये वाला केस नहीं आएगा. See, sometimes what happens is there are 5 options and you feel that one of them or 2 of them are not familiar. So you have to have trust on yourself and think यार मैंने पढ़ाई की है, काफ़ी की है, अगर मुझे नहीं पता ये ऑप्शन नहीं आएगा. That's also one way, you know, there's an instinct that tells you क्या होता है ना. So guys, we are done for today. Thank you very much. So if you found this session helpful, please like it, share it with your friends, and subscribe to our channel for upcoming awesome videos. Thank you.